Very good afternoon to all of you. Assalamu alaikum. Okay, so my name is Wasim Ahmed Bhatt and I have secured All India Rank 7 in CSE 2022. I think probably some of you would be knowing me. So आज का session I want it to be interactive. So for a brief moment I will talk about my background, and then after that slide talk about strategy, resources, and then you can ask whatever questions you have. Fine? Okay, so regarding my background, I come from a small town called Duru Shahabad from district Anantnag, Jammu Kashmir, and I did my schooling from that town only till 12th. After that I moved to NIT Srinagar, where I did BTech in Civil Engineering. That ended in 2019, and in 2019 itself I went to Delhi, took classes for civil services. So I didn't know that COVID would come in between. Then March 2020 COVID came and I had to come again to my home, did some online thing, and then wrote the exam. 2020 was my first attempt. In 2020 itself I qualified the exam with a rank of 225, and I was allocated Indian Revenue Service Income Tax. I don't know how many of you know about that service. Do you know any such service, Indian Revenue Service? So there are a lot of services in this exam, like almost 20 services are there. And most of us, me included, when I came for this exam, I thought there's only IAS, IPS, IFS, that's all I knew. I did not know about IRS, I did not know about other accounting services and all. So I got Indian Revenue Service. Then I thought, okay, I should try again, maybe नहीं करते हो. तो मुझे लगा कुछ तो हुआ है, and I saw Telegram groups and all में होते, तो वहाँ पे PDF देखिए अपना खोला, and I saw it was there, like right on the first page. तो मैंने उससे पहले सोचा था कि पहले 1.5 पेज में मैं चेक करूंगा, उसके बाद आई विल नॉट केयर बिकॉज इट डजंट मैटर एनीवे. मैंने पहले ही पेज पे देखा, आई थिंक आई एम फीलिंग इट राइट नाउ आल्सो. तो मैंने अपना नाम देखा, मेरे को बस अपना ही नाम दिखा, एंड दैट वाज क्वाइट लाइक अ सरियल मोमेंट. एंड फिर घर वालों एंड ऑल से बात करी, एंड फिर फोन्स आने लगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट आई एम हियर राइट नाउ. अदरवाइज यू गाइस वुड नॉट बी नोइंग मी. दैट्स द थिंग अबाउट दिस एग्जाम. वन मोमेंट यू आर अ कॉमन पर्सन, एंड अनदर मोमेंट यू आर लाइक sort of a celebrity among people, है ना. You have two main subjects. One is the general studies, another is CSAT. Earlier I just used to say general studies है, क्योंकि CSAT को मैंने साइड कर दिया था. मैं इंजीनियर हूँ ऑलरेडी, मेरे को सब पता है. But now I also say CSAT because I have been seeing कि CSAT की वजह से काफी लोग एग्जाम नहीं कर पाते. So GS में if you have seen the syllabus, it consists of almost 8 subjects, 7 to 8 subjects. Polity है, सोर्स सबको पता है, लक्ष्मीकांत. देन उसके बाद देयर इज ज्योग्राफी, सोर्स इज एनसीईआरटीज. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई वांट टू नो लाइक द ऑडियंस. सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी रिटन वन प्रीलिम्स एट लीस्ट. इसमें नोबडी नोज व्हाट द सोर्स इज. आई वंस रेड रमेश सिंह, देन आई वेंट टू एनसीईआरटीज. तो एनसीईआरटी में देयर इज इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, देयर इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज ग्रोथ और समथिंग लाइक दैट. इट्स एन एनसीईआरटी आल्सो. तो ये दो बुक्स पढ़ के व्हाट यू नीड टू डू, एवरी डे यू रीड द न्यूज़पेपर बिजनेस सेक्शन, और वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली गूगल से सर्च करना है. देयर आर सम वेबसाइट्स फॉर दैट. indianeconomy.net एक है जो काफ़ी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को इलैबोरेट करती है. देन देयर इज ऑल्सो अर्थपीडिया. ओके, सो ये वाली वेबसाइट्स यूज करके यू कैन डू इकोनॉमिक्स, एंड इसके ऊपर यू हैव टू रीड बजट डॉक्यूमेंट एंड इकोनॉमिक सर्वे. Now this is a huge thing. मतलब ये एक दिन में नहीं हो सकता. Over time, when you read for like 6-7 months, you keep reading the newspaper and all, and you keep looking at the concepts. तभी जाके ये क्लियर होगा कि है क्या. अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा. मतलब there is no such direct source जहाँ से आप पढ़ के बताओगे कि चलो यही एग्जाम में आएगा. There is no such thing. But economy में one thing that I can say is once you prepare the concepts properly, आप गलत नहीं करेंगे questions. क्योंकि it's mostly conceptual. Facilitated Mr. Wasim Bhatt, who's a person from Anantnag. He has done the state proud. UPSC is the most competitive examination in the world. He has managed to score the 7th position. It's a huge achievement that this individual has done. And we invited him to the academy to Chanakya, Srinagar, to share his experiences, his journey to the success,
what he did with our students. And the whole idea is that a message has gone to our students that there's no mountain high enough. If you work hard, put your heart and soul into the course that you're studying, you can achieve great heights in this world. And once again, I would like to congratulate Wasim for his fantastic achievement, and tell our students that, you know, there is a silver lining at the end of the cloud. Just keep your hard work hard, and make their parents proud, make the state proud. तो आज मैं यहाँ चाणक्य पे आया था और काफ़ी बच्चे थे यहाँ, और उनसे मैंने बात करी अपनी स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज, अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि काफ़ी गाइडेंस की किल्लत रहती है, तो मैंने सोचा कि अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प होती है, अगर इंस्पिरेशन मिलती है, दैट विल बी वेरी गुड। तो सर अब तो आप आए हमें पता है कितनी मेहनत आपको लगी यहाँ, तो कैसा फील? मेहनत तो देखिए काफ़ी लगी, बट जब पैशन होता है अंदर से आइडियाज करने का, तो डेफिनेटली यू डोंट स्केयर अवे फ्रॉम द हार्ड वर्क। तो अब करने के बाद मैंने सौ दैट रैंक एंड ऑब्वियसली। सर अगर सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज को रिलेटेड जो एस्पिरेंट्स है उनको कन्फ्यूजन रहता है कि लिमिटेड रखना चाहिए कि वास्ट रहना चाहिए, उसके रिलेटेड आप कुछ बोलिए। मुझे लगता है मतलब जनरल स्टडीज़ में योर सोर्सेज शुड बी लिमिटेड, एंड ऑप्शनल में आपको काफ़ी सोर्सेज से पढ़ के अपने नोट्स बनाने चाहिए। अच्छा सर, जो घर में बैठे एस्पिरेंट्स जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ ट्यूशन सेंटर्स में अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आप? आई थिंक उनके लिए डेफिनेटली अगर ऐसा कोई है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो गाइडेंस ऑनलाइन आपको मिल सकती है। ऑनलाइन अभी काफ़ी वो डायरेक्टली टेलिंग द रिसोर्सेज नॉट, फिर आप वो रिसोर्सेज एक बार लेके आप उनसे पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली टेक दैट गाइडेंस सीरियसली। सो देखो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब मेरा ये है कि आई पर्सनली हैड थॉट कि 3 अटेम्प्ट्स में प्रॉपर्ली सीरियसली होगा, तो 3 अटेम्प्ट्स में नहीं होता तो फिर कुछ और चीज़ का सोचते हैं, तो यू शुड ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ। शाद फिदाई, मैं चाणक्य IAS अकेडमी पे UPSC एस्पिरेंट हूँ, और आज यहाँ पे एकेडमी की तरफ से एक सेमिनार हुआ था, इंटरेक्टिव सेशन था, जो हमारे UPSC टॉपर हैं 7th रैंक के मिस्टर वसीम अहमद भट्ट सर, उनके साथ था, और बहुत ही ये फ्रूटफुल रहा ये सेशन। इसमें आंसर राइटिंग, ऐसे के हवाले से और बहुत सारी हमें स्ट्रैटेजीज़ बताई गई कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और किस तरीके से हम कामयाबी है जो उस पर गामजन हो सकते हैं और मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सेशन था हमारी चाणक्य IAS अकेडमी। मुझे बताइए यहाँ इतनी सारी अकेडमी से आपने चाणक्य क्यों चुना है? सर चाणक्य बेस्ट इसलिए है कि हम पिछले तारीख उठा के देखते हैं, पिछले कई सालों से जो इनके रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ पे आके जो माहौल मैंने देखा वो सच में वैसा ही था। मैसेज ये रहेगी कि दिल्ली वगैरह के सपने ना देखें, क्योंकि कश्मीर में एक बहुत ही अच्छा माहौल है, और इस माहौल में चाणक्य IAS अकेडमी हमारे लिए है। तो आ जाएं, अपनी उम्मीदें जो लेके आ रहे हैं ज़रूर आप कामयाब हों। थैंक यू। नाम शेख आमिर है, आई बिलोंग टू बारामूला। तो आज का जो यहाँ पर टॉपर स्टार्ट कर गया था, जो कि हमारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में AIR 7 रैंक थे, वसीम अहमद भट्ट साहब। सो इट वाज वेरी फ्रूटफुल इंटरेक्शन एंड टॉपर्स टॉक विद हिम। तो हमें यहाँ पर इंकरेजमेंट मिली, इंस्पायरेशन भी मिली कि हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए, हमें किस तरह इस एग्ज़ाम में ये सक्सेस हासिल करनी चाहिए। नहीं अभी तो नहीं दिया है, बट आई एम प्लानिंग टू गिव इट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। अच्छा, आपकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली आपको, जो सो दैट कि आप यहाँ पे है आज चाणक्य अकेडमी में? इंस्पायरेशन की बात अगर हम करें तो फैमिली से इंस्पायरेशन मिली, पेरेंट्स से, कि हमें जब जो बैकग्राउंड हमारा होता है मिडिल क्लास फैमिली, तो हमें खुद अपने आप को देखना पड़ता है हमारे बैकग्राउंड को, तो वो मेरे लिए एक इंस्पायरेशन है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। हमने यहाँ पर ये सीखा कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कि अगर हमारे पास जो पेपर होते हैं, हमारे जो रिसोर्स होते हैं, हमें कौन से रिसोर्स कंसिडर करने चाहिए। तो इसी गाइडेंस प्रोग्राम हमारे यहाँ। तो कितना फ़ायदा हुआ इससे? ये बहुत ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर हमें गाइडेंस ना है तो हम कुछ भी वहाँ पर मतलब लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस हो सकती है, चूँकि ये हमारे पास टॉपर थे AIR से, हम तो ये उस हिसाब से गाइडेंस करेंगे ताकि हम सक्सेसफुल हो जाए। तो ये गाइडेंस फ्रूट हुई हमारे लिए। थैंक यू। चलो।